اور سبت کے بعد ہفتے کے پہلے دن کو پھٹتے وقت مریم مگدلینی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے آئی، اور دیکھو ایک بڑا بھونچال آیا، کیونکہ خداوند کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو لڑکھا دیا اور اس پر بیٹھ گیا۔ اس کی صورت بجلی کی مانند تھی اور اس کی پوشاک برف کی مانند سفید تھی، اور اس کے ڈر سے نگہبان کانپ اٹھے اور مردہ سے ہو گئے۔ فرشتے نے عورتوں سے کہا، تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا۔ وہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا، اور جلد جا کر اس کے شاگردوں سے کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور دیکھو وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے، وہاں تم اسے دیکھو گے۔ دیکھو میں نے تم سے کہہ دیا ہے۔ اور وہ خوف اور بڑی خوشی کے ساتھ قبر سے جلد روانہ ہو کر اس کے شاگردوں کو خبر دینے دوڑے۔ اور دیکھو یسوع سے ملا اور اس نے کہا سلام۔ انہوں نے پاس آ کر اس کے قدم پکڑے اور اسے سجدہ کیا۔ اس پر یسوع نے ان سے کہا، ڈرو نہیں، جاؤ میرے بھائیوں سے کہو کہ گلیل کو چلے جائیں، وہاں مجھے دیکھیں گے۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسے ابتدا میں تھا، اب بھی ہے اور ہمیشہ تک رہے گا، آمین۔ آئے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ خدا قدوس، ہمارے زندہ ازلی اور ابدی خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے بیٹے یسوع کے لیے، کیونکہ تو نے اپنے بیٹے یسوع کے وسیلے سے یہ فضل کیا ہے کہ ہم تیری حضوری میں آ سکیں۔ اور تیرا شکر کرتے ہیں کہ آج تو نے ہمیں ایک بار پھر یہ موقع دیا ہے کہ یسوع کے جی اٹھنے کی عید کو ہم منا سکیں۔ صحت و تندرستی کے لیے شکر کرتے ہیں، تیرا شکر کرتے ہیں خداوند کہ ہم اپنے قدموں پر چل کر تیری حضوری میں آ سکے ہیں۔ اور خداوند جو لوگ یہاں پر آج عبادت کے لیے آ رہے ہیں یا آ چکے ہیں، ان سب پر اے باپ تیری برکت مانگتے ہیں۔ خدا پاک رو تو چھو، خدا پاک رو تو مسا کر اور معمور کر، اپنی آگ کی قدرت سے میں بھر دے۔ اور اسی طرح خداوند ہم دعا کرتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے آن لائن ہمارے ساتھ شامل ہیں، ان کے لیے بھی تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے نام سے برکت مانگتے ہیں اور پاک روح کی مدد اور رہنمائی مانگتے ہیں۔ خداوند ہم سب کے ایمان کو مضبوط کر، ہمارے خیال و دھیان تیری طرف لگے، اور آج کی یہ عبادت ہمارے لیے برکت کا باعث ہو۔ اور خداوند دعا کرتے ہیں کہ آج جہاں بھی تیرے لوگ عبادت کے لیے جمع ہوں تو اپنے لوگوں کی حفاظت کر، دہشت گردی سے اور شر پسند عناصر سے محفوظ رکھ۔ تیرا ہاتھ تیرے لوگوں پر بڑا رہے۔ اور آج جب پوری دنیا میں یسوع کے جی اٹھنے کی عید کو منایا جا رہا ہے، تو خداوند جہاں بھی لوگ جمع ہیں وہاں پر یسوع کا نام سر بلند ہو، اور تو اپنے لوگوں کو برکت دے، اور آج کی عبادت کے وسیلے سے لوگ معجزات پائیں، برکت پائیں، صحت و تندرستی ملے، اور خداوند ہمارے ایمان آج کی عبادت کے وسیلے سے اور مضبوط ہو جائیں۔ خداوند فوائد کے لیے بھی تیری مدد مانگتے ہیں۔ خدا پاک رو تو چھو، خدا پاک رو تو سبھی کو معمور کر دے اور رہنمائی بخش دے، تاکہ تیری رہنمائی میں حمد و ثنا میں ہمارے مددگار ہو سکیں، اور اس حمد و ثنا کے وسیلے سے یسوع کے نام کو ہم مل کر جلال دے سکیں۔ یسوع کے نام میں مانگ لیتے ہیں، آمین۔
सब मिलकर अपने ईमान का इकरार रसूलों के अकीदे के अल्फाज की सूरत में करें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, हमारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलम अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा काबिल मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक खुले कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम ज़बूर 111 गाएंगे। ज़बूर नंबर 111, तुसी गाओ सना, पहला हिस्सा, गाओ सना तुसी रब दी। ज़बूर नंबर 111, पहला हिस्सा, पहला वज़न, 111, तुसी गाओ सना तुसी रब दी।
تشریف رکھیں. آئے ہم اور دعا کریں گے خداوند اس کے جی اٹھنے کی ساری برکات کو ہماری زندگی میں نازل فرمائے. اور اسی طرح سے ہم اس جگہ کے لیے بھی خداوند کا شکر کرتے ہوئے ایف سی کالج کے لیے بھی خداوند کی برکت مانگیں گے. ایف سی کالج کو چلانے والے انتظامی افسران، فیکلٹی اور سٹاف کے لیے خداوند کی برکت مانگیں گے. اس کے ساتھ ہی ہم اپنے ملک کے لیے دعا کریں گے کہ خداوند ہمارے ملک کو امن اور سلامتی بخشے، سیاسی استحکام آئے، معاشی استحکام ہو اور ہمارا ملک ترقی کی طرف گامزن ہو سکے. ہم پوری دنیا میں مسیحوں کی دعا کریں گے جو آج یسوع کے جی اٹھنے کی عید کو منا رہے ہیں کہ خداوند ان کی حفاظت کرے اور انہیں حقیقی طور پر خداوند یسوع مسیح میں روحانی طور پر جی اٹھنے کا فضل بخشے. آئے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں. خداوند کا شکر ہو کہ اس نے ہم کو آج تک زندہ رکھا اور یہ سالانہ ایسٹر جو خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی خوشی کی عید ہے اس میں ہم شامل ہوئے ہیں. اس کا شکر ادا کرتے ہیں. اس سے بیشتر کہ دعا میں ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں. میں رہنمائی کروں. میں اپنی طرف سے، اپنے خاندان کی طرف سے آپ سب کو ایسٹر مبارک کہتا ہوں. خدا آپ کو بہت بہت مبارک کرے. اور ہم خدا کے دل جھکیں اور دعا کریں. اے خداوند ہمارے آسمانی باپ، ہم سب کے سب دل کی شکر گزاری سے تیرے حضور جھک کر تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند تو نے آج تک ہم سب کو زندہ رکھا اور اس سالانہ عید میں ہمیں شامل ہونے کا فضل ملا. اور ہم سب مل کر خداوند تیرے بیٹے یسوع کی جی اٹھنے کی خوشی میں شامل ہو کر تیرا شکر کرتے ہیں. وہ جی اٹھا اس بڑی فتح مندی کے لیے، اس بڑے خداوند ذات کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. وہ آسمان کی طرف سے زمین پر آسمانی مشن کو لے کر آیا اور جس میں انسانوں کو نجات دینے اور انسانوں کو بحال کرنے اور خدا کے ساتھ ملانے کا انتظام تھا. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں تو نے اسے اپنے آسمانی مشن کو پورا کیا. جمعہ کے روز خداوند تو صلیب پر اپنے آپ کو تو نے لٹکا دیا اور خداوند خدا تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو اس صلیب کے سارے دکھ اور جو تجھ پر تشدد ہوا تو اس سے مغلوب نہیں ہوا، بلکہ تو ہوش مندی کے ساتھ 7 کلمات کے ساتھ ہمیں یاد دلایا کہ تو نے سب کچھ برداشت کیا ہے انسانوں کی خاطر. تو انسان بنا، انسانوں کی خاطر تو نے سب کچھ برداشت کیا اور تو نے اپنے بیٹے خداوند اپنے یسوع مسیح کے نام میں تو نے سب کو اپنے بیٹے یسوع کے جلال کے لیے استعمال کیا. تیرا شکر ہو خداوند تو خدا کا بڑا ہے اور تو نے اپنے اوپر سارے جہان کے گناہ کو اپنے اوپر لیا. اور خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے اس بڑے مشن کو پورا کر کے سب کچھ انسانیت کے لیے کر دیا. تیرا مرنا بھی انسانوں کے لیے تھا اور جی اٹھنا بھی تیرا انسانوں کے لیے تھا. اور ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تجھ پر ایمان رکھنے والوں کو روح القدس جو تیری طرف سے ہے دیا جاتا ہے. ہم اس روح القدس کی مہر سے، اس روح القدس کی موجودگی سے خداوند تیری ملکیت ٹھہرتے ہیں. تیرا شکر ہو، تیرے نام کی تعریف ہو. اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے. جتنے لوگ تیرے حضور موجود ہیں سب کے سب برکت پائیں اور جتنے آنے والے ہیں وہ بھی. اے خداوند ہم ایف سی کالج کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں جو ایک مسیحی یونیورسٹی ہے اور اس میں ہمیں یہ حال عبادت کے لیے
ملا ہوا ہے، ہم اس کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جہاں کہیں ہم تیری پرستش کے لیے، تیری عبادت کے لیے جمع ہوتے ہیں، تو موجود ہوتا ہے، اور تو یہاں پر بھی ہے۔ سب کو اپنی موجودگی کا فضل بخش، تیرا رحم، تیرا فضل سب پر رہے۔ ہم اپنے ملک پاکستان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اس ملک میں خداوند تیری سلامتی ہو، کیونکہ تو سلامتی کا شہزادہ ہے۔ زمین اور آسمان تیرے ہیں، ملک تیرے ہیں، اور ملکوں پر بادشاہیاں بھی تیری طرف سے قائم ہوتی ہیں۔ جو تیری مرضی کے مطابق ہوتی ہیں ان کو قائم رکھتا ہے، جو تیری مرضی کے مطابق نہیں ہوتی وہ معذور ہو جاتی ہیں۔ یہ تیرا رحم ہے، یہ تیرا فضل ہے۔ اے خداوند، ہم تیرے حضور محنت کرتے ہیں پاکستانی کلیسیا کے لیے جو خداوند اس ملک میں موجود ہے۔ تو کلیسیا کو بڑی برکت دے۔ آج کے دن جہاں کہیں تیرے لوگ تیری پرستش کے لیے، تیری تعریف کے لیے اور اس خوشی کو منانے کے لیے جمع ہیں، ان سب پر تیرا بڑا فضل ہو، ان سب کی حفاظت کیے رکھ اور ان کو برکت دے۔ ہم خداوند عالمگیر کلیسیا کے لیے بھی تیرا شکر کرتے ہیں۔ تو نے کلیسیا کو ہر جگہ پر قائم کر رکھا ہے تاکہ وہ وہاں پر تیرے گواہ ہوں، وہاں پر تیرے نام کو عزت اور جلال دے، وہاں پر رہ کر وہ انجیل کی بشارت دوسروں تک پہنچا سکیں، تاکہ انجیل کی بشارت کو سن کر دنیا کے لوگ تیرے بیٹے یسوع کو پہچان کر اس پر ایمان لا کر نجات اور زندگی کے وارث بن سکیں۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اپنے اس پریسبیٹرین کلیسیا ایف سی کالج کے لیے تیرا شکر ہو جو تیرے نام سے کھلواتی ہے، اس پر تیری بڑی برکت ہو۔ خداوند، آج کے دن جو تیرے خادم کے وسیلہ اس خوشی کے موقع پر، ایسٹر کے موقع پر جو پیغام دیا جائے وہ سب کے لیے بڑی برکت کا سبب بنے۔ تیرا رحم، تیرا فضل سب پر ہو۔ ہماری دعا کو سن، یہ سب کچھ ہم تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند کی تعریف میں ہم زبور گیت 245 گائیں گے۔ یہ کیسا زلزلہ آیا قیامت کی نشانی ہے، گیت نمبر 245۔ خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی خوشی کو منا رہے ہیں، اور اس خوشی میں یہ گیت جو ہے وہ سبھی جوش کے ساتھ اور مل کر گائیں تاکہ ہم سب اکٹھے مل کر یسوع کے جی اٹھنے کی خوشی کو منا سکیں۔ कैसा
बार फिर हम दुआ के लिए अपने सर को झुकाएंगे और हम ये शिफाया दुआ करेंगे। हमारा ईमान है कि हमारा यीशु जिंदा है, उसने मौत पर फतह पाई है और उसके नाम की कुदरत से ही हम भी फतहमंद हैं। उसके नाम की कुदरत के वसीले से हम बीमारियों पर फतह पाते हैं। इसलिए इस वक्त हम अपने लिए, अपने घरानों के लिए और हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं उनके लिए खुदावंद से दुआ करेंगे कि खुदावंद ने शिफा बख्शे। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा कदूस हमारे जिंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरे बेटे यीशु के लिए शुक्र करते हैं जिसने मौत और फतह पाई है। हम शुक्र करते हैं बाप कि तूने हमें चुना कि हम जिंदा खुदावंद पर ईमान रखने वाले लोग हों। तेरा शुक्र करते हैं यीशु नाम की कुदरत के लिए जो सब नामों से आला है और उसके वसीले से तेरे लोग फतह पाते हैं। इसलिए खुदावंद बड़े ईमान के साथ हम तेरी हजूरी में मौजूद हैं। तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम को मुबारक कहते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद तू हम में से हर एक को छू, ताकि तेरे छूने के वसीले से हम सभी बरकत पाएं, मौजज़ात पाएं। खुदावंद तू हम में से हर एक को छू दे। यहाँ पर मौजूद हर एक को छू खुदावंद, जो ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं उनकी जिंदगी में मौजज़ा कर, सभी खुदावंद शिफा पाएं। हमारी हर एक जिस्मानी कमजोरी, बीमारी, जिस्मानी दर्द और तकलीफ यीशु के नाम से जाता रहे। खुदावंद आज हम तेरी हजूरी से शिफा के साथ वापस लौटना चाहते हैं। तेरे बेटे यीशु के नाम में शिफा मांगते हैं। तू रहम कर, तू खुदावंद शिफा दे, तू मौजज़ा कर, एक एक को छू खुदावंद और हमें शिफा बख्श दे। हमारी रूहानी बीमारियां, रूहानी कमजोरियां भी यीशु के नाम से जाती रहें। खुदावंद हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं उन्हें तेरी हजूरी में ले आते हैं और उनके लिए भी दुआ करते हैं। खास तौर पर खुदावंद हम दुआ करते हैं मिसेस यूसुफ सरोया के लिए, मिसेस जेडी आर्थर, बहन फौजिया, मिसेस नजीर ज़ियाई, मिसेस सरवर, मिसेस बीना क्रिस्टोफर, मिसेस खुर्शीद, मिसेस नवीज़ा के लिए, इसी तरह से भाई क्रिस्टोफर लेस्ली, भाई क्रिस्टोफर यूसुफ, भाई नदीम जॉर्ज, भाई शहजाद, भाई अगस्टीन,
और भाई आसफ रशीद के लिए दुआ करते हैं, और भी जितने लोग जो बीमारी की हालत में, हम सब के लिए यीशु के नाम से शिफा मांगते हैं। एक एक को छू खुदावंद, सभी की जिंदगी में तू मौजज़ा कर, सभी को शिफा दे, मुकम्मल बहाली दे। भाई आबिद के लिए खुदावंद दुआ करते तो अपने मंदिर को छू और मुकम्मल तौर पर बहाल कर, मुकम्मल तौर पर मौजज़ा हो, मुकम्मल तौर पर शिफा मिले। तो अपने बेटे को छू दे खुदावंद, और खुदावंद हमें से हर एक की तू हिफाजत कर, कोरोना वायरस से हमें महफूज रख, मुख्तलिफ वबाई अमराज से खुदावंद हमें बचाए रख। हमारी कलीसिया में जो बे औलाद जोड़े हैं, तेरे बेटे यीशु के नाम से उनके लिए औलाद की बरकत मांगते हैं। हम सब मुतफिक होकर एक दिल होकर दुआ करते हैं, उन्हें छू खुदावंद, उन्हें अपनी मेरास दे और उनकी जिंदगी में बड़ा मौजज़ा हो। यीशु की कुदरत को मांगते हैं, तू रहम कर खुदावंद, और हम में से हर एक की जिंदगी में बड़े बड़े मौजज़ात हो, ताकि हम तेरी कुदरत का तजुर्बा करें, यीशु के नाम से, आमीन। इस वक्त हम क्वायर से गीत सुनेंगे, खासतौर पर यीशु के जुटने के हवाले से, ईद क़यामत मसीह के हवाले से ये गीत है, और हम उनसे इस गीत को सुनेंगे।
आए हम अब सभी मिलकर खुदावन की तारीफ में, उसके जी उठने की खुशी में एक गीत गाएंगे, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। गीत नंबर 173, 173। ये खुशी का गीत है, शुक्रगुजारी का गीत है, फतह का गीत है। हम सब ने यीशु मसीह में फतह पाई है। यीशु की फतह हमारी फतह है और उसने हमें इस फतह में शामिल किया है। इसलिए सभी मिलकर अपनी जुबानों को खोलें, अपने होठों को खोलें और अपनी जुबान से इस हम के गीत को, तारीफ के गीत को गाएं। करंथियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, उसका 15वां बाब, उसकी 20वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक। करंथियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, उसका 15वां बाब और उसकी 20वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक। कलाम मुक़द्दस की हिस्से की तिलावत करने में हमारे रहनुमाई
डॉक्टर बाबर यूसुफ करेंगे। आज के लिए कलाम मुक़द्दस की तिलावत पहला कुरिन्थियों बाब 15 20 आयत से 28 आयत तक। लेकिन फिल वाक़या मसीह मुर्दों में से जी उठा और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई तो आदमी ही के सबब से मुर्दों की क़यामत भी आई। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे, लेकिन हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, इसके बाद आखिरत होगी। उस वक्त वो सारी हुकूमत और सारा इख्तियार और कुदरत नेस करके बादशाही को खुदा यानी बाप के हवाले कर देगा। क्योंकि जब तक वो सब दुश्मनों को अपने पांव तले न ले आए उसकी बादशाही करना ज़रूर है। सबसे पिछला दुश्मन जो नेस दिया जाएगा वो मौत है, क्योंकि खुदा ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। मगर जब वो फरमाता है कि सब कुछ उसके ताबे कर दिया, तो जाहिर है कि जिसने सब कुछ उसके ताबे कर दिया वो अलग रहा। और जब सब कुछ उसके ताबे हो जाएगा तो बेटा खुद उसके ताबे हो जाएगा, जिसने सब चीज़ें उसके ताबे कर दी, ताकि सब में खुदा ही सब कुछ हो। खुदावन की कलाम का पढ़ा जाना हम सब के लिए बाइस एक पहले आएंगे जलाल।
आते हैं और मेरे कान में कुछ कह के जाते हैं। तो आप में से कुछ लोगों को एहसास होगा अगर क्या कहते हैं। मैं कहता हूँ कि यार खुद ही कह दिया करो, कहते हैं मैं डर लगता है। तो वो मुझे कहते हैं बार बार आप यहाँ से अनाउंस करें, मैं कहता हूँ यार मुझे भी डर लगता है। तो लेकिन मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ आपसे कि आपने साथ जो खाली सीट्स हैं उनको ना छोड़ा करें, क्योंकि जब आपकी सीट्स खाली होती हैं साथ, तो जो बाद में आने वाले होते हैं उनके लिए मुश्किल होती है बैठने के लिए। आप उनके मददगार हों, जो बाद में आए हैं उनके ज़रूर मददगार हों, ताकि वो आपको भी डिस्टर्ब ना करें चलते हुए गुजरते हुए, और आप भी डिस्टर्ब ना हो और वो भी परेशान ना हो। तो ज़रूर जो अपनी सीट्स खाली हैं उनको प्लीज़ फिल करें जो दरमियान में हैं, ताकि जो बाद में आने वाले हैं वो साथ रह सकें। ये बल्कि कुछ लोगों ने और सीट्स खाली छोड़ दी हैं फिल करने के बजाय। आपका शुक्रिया, थैंक यू सभी लोगों ने जो कोऑपरेट किया। ये अशर्स के साथ जरूर कोऑपरेट करें, ये आप लोगों की मदद के लिए। आपने देखा किस तरह से आप लोगों की मदद करते हैं, आप लोगों को आप केयर करते हैं कि आप लोगों को मुश्किल ना बैठने में, तो ज़रूर उनके साथ कोऑपरेट किया करें। आए हम दुआ के लिए अपने सर कुछ खुदावंद खुदा, हमारे प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे यीशु के लिए जो जिंदा है और जिसने मौत पर फतह पाई है, और शुक्र करते हैं खुदावंद के तुम्हें मौका दिया कि आज हम यीशु के जी उठने की ईद को मना रहे हैं। खुदावंद हम निस्बत तेरी हजूरी में मौजूद हैं, तेरी आवाज़ को सुनने वाले हैं। खुदा पाक खुद हम अपने आप को तेरे ताबे करते हैं और दरख्वास्त करते हैं खुदावंद कि तू में छू, खुदा पाक को तू छू, हमारे ख्याल और ध्यान कलाम की तरफ लग जाएं, दुनियावी सोचे और फिक्रें यीशु के नाम से जाती रहे, संजीदगी की रूह मिल जाए। खुदावंद मैं अपने आप को तेरे ताबे करता हूँ, खुदावंद अपनी आँख से धो दे, खुदा पाक को तू मदद कर, खुदा पाक को तू बोल, ताकि हम सब बरकत पाएं यीशु के नाम से, आमीन। आदम और हवा के गुनाह के बायस, नाफरमानी के बायस इस दुनिया में मौत आई, और आज तक इस दुनिया में मौत जो है वो हमें अपने इर्द गिर्द वकूफ़ पज़ीर होती हुई नजर आती है। और ये एक सवाल रहा है कि क्या कभी मौत पर भी इंसान फतह पा सकता है? क्या मौत जो इस दुनिया में इंसानों पर वारिद हुई, क्या कभी इंसान इसके चुंगल से निकल सकेगा? क्या इंसान में यह सलाहियत और अहलियत मौजूद है कि वो मौत के बंधनों को तोड़ सके, मौत से आज़ादी और रहाई हासिल कर सके, या मौत से बच सके? आज तक हमें इंसानों के जरिए से ऐसा होता हुआ मुमकिन नजर नहीं आया। लेकिन कलाम मुकद्दस में कुछ ऐसे वाक़यात हमें मिलते हैं जिसमें मौजज़ात हुए और लोग जिंदा हुए, लेकिन फिर दोबारा से वो आखिरकार इस दुनिया से चले गए। लेकिन इसके बावजूद भी और भी ऐसे वाक़यात मिलते हैं जिसमें खुदा ने अपने अख्तियार को जाहिर किया कि खुदा का आज भी अख्तियार है कि वो मौत को जिंदगी में बदल सकता है। हनूक का जिंदा उठाया जाना, जब हम आदम के नस्लनामे को देखते हैं 5वें बाब में पैदाइश की किताब में, तो हर एक नस्लनामे के जो नस्ल का जिक्र है उसमें जिस भी शख्स की नस्ल का बयान किया गया है उसके सालों का जिक्र है सैकड़ों की तादाद में, एज उम्र जो है 100 की तादाद में, कोई 600 साल, कोई 900 साल, कोई 800 साल, लेकिन आखिरकार हर एक आखिर में लिखा है तब वो मरा। यानी मौत के इतने 100 साल जिंदा रहने के बावजूद भी मौत से कोई इंसान बच नहीं सका। लेकिन हनूक की जब
बारी आती है, हनूक का जिक्र आता है, तो लिखा है कि वो गायब हो गया, उसके साथ मौत का जिक्र नहीं, लेकिन खुदा ने उसे उठा लिया, खुदा ने जाहिर किया, खुदा ने वाज़े किया कि उसके पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो मौत को खत्म करे, मौत को जिंदगी में बदल दे, जिंदगी को हमेशा के लिए कायम कर दे। और फिर उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं, उसकी क़यामत को देखते हैं, मुकद्दस एलिया के जिंदा उठाए जाने के मौजज़े को, वाक़े को हम देखते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के मौजज़े को देखते हैं कि वो जी उठा, रूह कुदस की कुदरत से जी उठा। और खुदावंद यीशु मसीह की क़यामत, खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना हमें ये एहसास देता है कि कलाम मुक़द्दस इस बात को वाज़े करती है, इंसानों की मायूसी को खत्म करती है, इंसानों की नाउमीदी को खत्म करती है, इस सवाल का जवाब देती है कि क्या कभी मौत का अख्तियार खत्म हो सकता है? हाँ, खुदा का कलाम इस हकीकत को बयान करता है कि यीशु के वसीले से खुदा ने इस दुनिया में से मौत के अख्तियार को खत्म किया है। और मुकद्दस अय्यूब ने भी बाइबल मुकद्दस में यही सवाल किया, पहले इससे सवाल किया 14वें बाब में, अगर आदमी मर जाए तो क्या फिर जिएगा? फिर उसके बाद 19वें बाब में फिर वो कहता है लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा मखरसी देने वाला जिंदा है और आखिरकार वो जमीन पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस तरह बर्बाद होने के बावजूद, बर्बाद हो जाने के बाद भी मैं अपने जिस्म में से खुदा को देखूंगा। वो रेज़रेक्शन का जिक्र करता है, क़यामत का, जी उठने का जिक्र करता है। उसके अलावा पुराने अहदनामे में और भी अंबिया, मुकद्दस यशाया, मुकद्दस होसिया, मुकद्दस हिजकियेल रेज़रेक्शन का, जी उठने का जिक्र करते हैं। यानी जहां पर दुनिया में ना उम्मीदी थी, खौफ था, मायूसी थी कि कभी भी मौत शायद दोबारा से जिंदगी में तब्दील नहीं हो सकती, खुदा ने अपने इख्तियार को अपने बंदों के वसीले से जाहिर किया। उसके बंदों ने खुदा के लोगों तक, मुकद्दसीन ने खुदा के लोगों तक इस पैगाम को पहुंचाया कि खुदा मौत को जिंदगी में बदलने की कुदरत रखता है। और हमें बाइबल मुकद्दस में जी उठने या क़यामत और रेज़रेक्शन जो है, इसकी 5 मुख्तलिफ हालतें नजर आती हैं। 5 मुख्तलिफ अंदाज में बाइबल मुकद्दस में जी उठने को बयान किया गया है। जी उठने के बारे में बाइबल मुकद्दस ने बयान किया है, लेकिन उसके भी आगे मुख्तलिफ हालतों को बयान किया है, किस तरह से रेज़रेक्शन क्या है, क़यामत क्या है, जी उठना क्या है, जिसकी आज हम ईद क़यामत अल मसीह, जब क़यामत का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं तो असल में ये क्या है? इंसानों के नज़दीक क़यामत का एक ही मानी लिया जाता है। क्या सोचते हैं जब क़यामत का ज़हन में आता है लफ्ज़, तो फौरन सोचते हैं तबाही, बर्बादी, दुनिया का खात्मा। लेकिन क़यामत का लफ्ज़ का जो मतलब है वो और है। उसका मतलब है कायम होना, खड़े होना, खड़ा करना। लेकिन हमारे ज़हन में वही मतलब है, क़यामत का मतलब तबाही है, क्योंकि हम सोचते हैं कि जब खुदा आएगा, खुदावंद यीशु मसीह आएंगे, तो जो हमें दुनिया की तबाही के बारे में, आफात के बारे में बयान मिलता है, अदालत होगी, तो अक्सर एक ही लफ्ज़ ज़हन में आता है, तबाही, बर्बादी क़यामत का। लेकिन क़यामत का जो मानी है वो है कायम होना, खड़ा करना। और बाइबल मुकद्दस 5 मुख्तलिफ अंदाज में इसको पेश करती है। सबसे पहले जो रेज़रेक्शन है, क़यामत है, उसको इस अंदाज में पेश करती है कि कुछ मखसूस लोगों का जिस्म की सूरत में जी उठना। जो मौजज़े हैं, जो बाइबल मुकद्दस में मौजज़े हैं, उनमें जो क़यामत है या जी उठना जो है, वो मखसूस लोगों का, जो जिनका जिक्र है, उनका
फानी जिस्म की सूरत में जी उठना, जो दोबारा मर गए। और उसके बाद दूसरा जो है वो है फानी जिस्म का गैर फानी हालत में जी उठना, जो यीशु का वाक़या। पहला है कि फानी जिस्म का फानी हालत में जी उठना, जो चंद लोग उठे, जी उठे, दोबारा से मर गए। फानी जिस्म का गैर फानी हालत में जी उठना, यीशु जो फानी हालत में मरा, दफन हुआ और गैर फानी हालत में जी उठा। और उसके बाद तीसरी जो क़यामत या जी उठने की खुदा के कलाम में बयान है, वो है कि रूहानी तौर पर ईमानदारों का जी उठना, रूहानी तौर पर गुनाह की जिंदगी से आजादी हासिल करके रूहानी तौर पर नई जिंदगी में जी उठना। उसके बाद चौथी जो किस्म है वो है फ्यूचर के बारे में, मुस्तकबिल के बारे में। उसमें मुस्तकबिल में ईमानदारों का गैर फानी हालत में जी उठना। दूसरी किस्म थी सिर्फ यीशु का गैर फानी हालत में जी उठना, और चौथी किस्म है कि ईमानदार गैर फानी हालत में जी उठेंगे। और ये तस्सलुनीकियों के खत में हमें बयान मिलता है, करंथियों के भी पहले खत के 15वें बाब में ये बयान मिलता है। और पांचवा जो है वो है दुनिया के हर एक इंसान का जी उठना अदालत के लिए। और ये जो हवाला आपके सामने तिलावत किया, इनमें सारी जिक्र है चीज़ों का, कि जो क़यामत है वो किस किस तरह से है, कि किस तरह से लोग जी उठेंगे। ईमानदार गैर फानी हालत में जी उठेंगे, दुनिया के सारे इंसान अदालत के लिए जी उठेंगे। और इन सारे जी उठने, क़यामत की बुनियाद जो है, जी उठने की जो बुनियाद है, कुव्वत अख्तियार जो है, वो इलाही ज़ात है, खुदा है। और खुदा ने इसे अपने बेटे यीशु के सुपुर्द किया है। यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील और उसके 5वें बाब में हम इस अख्तियार के बारे में पढ़ते हैं। यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 25वें आयत में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे। क्योंकि जिस तरह बाप अपने आप में जिंदगी रखता है, उसी तरह उसने बेटे को भी बख्शा कि अपने आप में जिंदगी रखे, बल्कि उसे अदालत करने का भी इख्तियार बख्शा, इसलिए कि वो आदमजाद है। इससे ताज्जुब ना करो, क्योंकि वो वक्त आता है कि जितने कब्रों में हैं उसकी आवाज सुनकर निकलेंगे, जिन्होंने नेकी की है जिंदगी की क़यामत के वास्ते, और जिन्होंने बदी की है सजा की क़यामत के वास्ते। यहाँ पर हमें खुदावंद यीशु मसीह के अख्तियार के बारे में पता चलता है कि जी उठने का जो अख्तियार है वो यीशु के पास है, और दूसरों के जी उठने का जो अख्तियार है वो भी यीशु के पास है। जिंदा करने का अख्तियार यीशु के पास है। खुदा ने अपने बेटे यीशु को यह अख्तियार दिया है कि वो अपने आप में जिंदगी रखे और जिंदगी दे और जिंदा करे। और ये बाइबल मुकद्दस में हमें मौजज़ात से पता चलता है कि उसकी आवाज के अख्तियार से मुर्दे जी उठते हैं। और यहाँ पर भी यीशु ने यही कहा कि वो वक्त आता है कि जितने कब्रों में हैं उसकी आवाज सुनकर निकलेंगे, मुस्तकबिल के बारे में है। और इसी तरह से लिखा है कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे। ये हाल के बारे में कि जो खुदावंद यीशु मसीह की आवाज सुनेंगे, उसके कलाम को सुनेंगे, जो दुनिया में मौत की जिंदगी बसर कर रहे हैं, मुर्दापन गुनाहों की जिंदगी बसर कर रहे हैं, उसकी तालीम सुनेंगे तो जिएंगे। और मुस्तकबिल में यीशु की आवाज से मुर्दे जी उठेंगे। और मौजज़ात दो जो हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया, और मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील उसके 27वें बाब में खुदावंद यीशु मसीह ने जब बड़ी आवाज से पुकार कर जान दे दी, तो उस वक्त भी हमें मौजज़े मिलते हैं। वो मौजज़ा क्या है कि बहुत से मुकद्दसीन जो सो गए थे वो जी उठे, और उनके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। आवाज क्या थी? बड़ी आवाज से चिल्लाकर यीशु ने जान दे दी।
اسی طرح لازر کا جو معجزہ ہے 11ویں باب میں یوحنا کی انجیل میں، اس نے بڑی آواز سے پکار کر کہا اے لازر باہر نکلا. اور یہاں پر بھی یوحنا کی انجیل کے 5ویں باب میں بھی آواز کا ذکر ہے کہ اس کی آواز میں یہ قدرت ہے کہ مردے جی اٹھیں گے. اس کی آواز کی قدرت، اس کا اختیار مردوں کو زندہ کرتا ہے. یعنی قیامت کی بنیاد، قیامت کا محور اور مرکز خداوند یسوع مسیح ہے، جس نے موت پر فتح پائی ہے، جس نے قبر پر فتح پائی. وہی اس دنیا میں موت کو زندگی میں بدلنے کا وسیلہ بنا ہے. وہی اس دنیا میں موت کے اثر کو، موت کے نتائج کو، گناہ کے نتائج کو ختم کرنے کا باعث بنا ہے. اور کرنتھیوں کے پہلے خط کے 15ویں باب کے آخری آیات میں 55ویں اور 56ویں آیت میں لکھا ہے اے موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا. موت کا ڈنک گناہ ہے اور گناہ کا زور شریعت ہے. یعنی موت کا اثر جو گناہ کے باعث تھی، موت کے نتائج جو انسان کی زندگی میں ہیں، اس پر فتح خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہے. اور خداوند یسوع مسیح کا یہ جی اٹھنا چند انسانوں کے لیے ہی نہیں ہے. اس جی اٹھنے کی، اس ریزوریکشن کی جو نیچر ہے، ماہیت ہے، وہ عالمگیر ہے. عالمگیریت ہے اس ریزوریکشن میں کہ یسوع کے جی اٹھنے کے وسیلے سے پوری دنیا، جس طرح اس کے کفارے کے وسیلے سے پوری دنیا نجات کا تجربہ پاتی ہے اور پوری دنیا کا یہ خوشخبری ہے کہ وہ سبھی دنیا کے انسانوں کے گناہوں کے لیے ہوا، کفارہ دیا، اسی طرح اس کا جی اٹھنا بھی دنیا کے ہر ایک انسان کے لیے، اور نہ صرف دنیا کے ہر ایک انسان کے لیے، دنیا کی ہر ایک مخلوق کے لیے ہے. رومیو کے خط کے 8ویں باب میں دنیا کی ہر ایک مخلوق کے لیے مخلصی کی راہ کا بیان کیا گیا ہے. 8ویں باب کی 19ویں میں لکھا ہے مخلوقات، صرف انسانوں کا ذکر نہیں ہے، مخلوقات کمال آرزو سے خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھتی ہیں، اس لیے کہ مخلوقات بطالت کے اختیار میں کر دی گئی تھی. اس امید پر بطالت کے اختیار میں کر دی جس نے نہ اپنی خوشی سے بلکہ اس کے باعث جس نے اس کو اس امید پر بطالت کے اختیار میں کر دیا کہ مخلوقات بھی فنا کے قبضے سے چھوٹ کر خدا کے فرزندوں کے جلال کی آزادی میں داخل ہو جائے گی. کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ ساری مخلوقات مل کر اب تک درد ذہن میں پڑی کراہتی ہیں، اور نہ فقط وہی بلکہ ہم بھی جنہیں روح کے پہلے پھل ملے ہیں آپ اپنے باطن میں کراہتے ہیں. یعنی نہ صرف انسان بلکہ دنیا کی ہر ایک مخلوق مخلصی کی راہ دیکھتی ہے. اور خداوند یسوع مسیح کا جی اٹھنا، اس کی قیامت دنیا کے ہر ایک مخلوق کے لیے ہے، اور اس کا جی اٹھنا جو ہے وہ دنیا کے ہر ایک انسان کے لیے ہے. اور اس کا جی اٹھنا ہمیں اس دنیا میں ایک خوشخبری دیتا ہے جس کے بارے میں پالوس نے کہا کہ وہ جی اٹھنے والوں میں پہلا پھل ہے. وہ پہلا پھل ہے جی اٹھنے والوں میں. اس میں بڑا واضح لکھا ہے کہ آدمی کے سبب سے موت آئی اور آدمی ہی کے سبب سے مردوں کی قیامت بھی آئی، اور وہ جی اٹھنے والوں میں پہلا پھل ہے. یعنی میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جی اٹھنے کی بنیاد اس دنیا میں خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہے، قیامت کی بنیاد یسوع کے وسیلے سے ہے. جی اٹھنا اس کے اپنی اختیار اور قدرت میں ہے، دوسروں کا جی اٹھنا بھی اس کے اختیار اور قدرت میں ہے، کیونکہ اسی نے موت پر اس طور سے فتح پائی کہ کوئی اور انسان اس طرح سے فتح نہیں پا سکا. ہم صبح بھی اس بارے میں سیکھ رہے تھے کہ خداوند یسوع مسیح کا جی اٹھنا دنیا کے انسانوں سے جو جی اٹھے مختلف ہے. دنیا میں اور بھی انسان جی اٹھے، اور بھی معجزات ہیں، اور بھی معجزات کو ہم سنتے ہیں جس میں ہم پڑھتے ہیں کلام مقدس میں، اور کلام مقدس میں جتنے بھی اور معجزات ہیں ان میں اور یسوع کے جی اٹھنے میں فرق ہے. جو بھی جی اٹھا وہ دوبارہ سے مر گیا،
जो भी जी उठा वो फानी बदन के साथ जी उठा, और जो भी जी उठा वो किसी और के मुआवजे से जी उठा। ये तीन बातें हमें नजर आती हैं कि जो भी जिंदा हुआ है उसको किसी ने मुआवजा करके जिंदा किया है। जो भी जी उठा है इसी जिस्म के साथ जी उठा और फिर से दोबारा से मर गया। लेकिन जब यसू जी उठा तो यसू इस जिस्म में नहीं बल्कि जलाली बदन में जी उठा। यसू गैर फानी बदन में जी उठा, और यसू को किसी ने जिंदा नहीं किया। यसू रूहुल कुदस की कुदरत से अपने अख्तियार से जी उठा, और उसने इस अख्तियार का दावा भी किया है कि मुझे अपनी जान देने का भी इख्तियार है और उसे ले लेने का भी इख्तियार है। यानी यसू का जी उठना दूसरे इंसानों से मुख्तलिफ, जो मौजज़ात हुए हैं उनसे मुख्तलिफ है, क्योंकि वो गैर फानी हालत में जी उठा है, वो अपने ही इख्तियार से जी उठा है, और वो जलाली बदन में जी उठा है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह का जो इख्तियार है वो दुनिया में हर एक इंसान के जी उठने के इख्तियार की बुनियाद बना है। और इस जी उठने का जो असर है, जो इसके नतायज हैं, वो भी हम इस हवाले में देखते हैं कि उसके जी उठने के कुछ नतायज हैं। उसके जी उठने की बरकत है। उसका जी उठना वैसे ही अचानक नहीं हुआ, उसका जी उठना महज अपने लिए नहीं था कि उसको जी उठने की जरूरत है। उसका जी उठना इंसानों के लिए है ताकि इंसान उसकी रेजरेक्शन से बरकत पाए। उसका मौत पर फतह पाना इंसानों के लिए है ताकि इंसान भी इस खुशखबरी को पाए। और चंद एक खुशखबरी की बातें इंसानों के हवाले से भी हैं और दुनिया के हवाले से भी हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना पूरी कायनात पर असरअंदाज होता है। पूरी कायनात जी यीशु के जी उठने के वसीले से बदली जाएगी। हम मुकाशवा की किताब में पूरी कायनात के बदले जाने, नए आसमान और नई जमीन के बनाए जाने या दोबारा से इस जमीन को नए अंदाज में बनाने या बदल जाने के बारे में बयान देखते हैं। मुकाशवा की किताब उसका 21वां बाब और पतरस का दूसरा खत उसका 3रा बाब और उसकी 13वीं आयत। पतरस का दूसरा खत उसका 3रा बाब और उसकी 13वीं आयत ये यीशु के दोबारा आने के बारे में है, और ये यीशु के जी उठने का नतीजा है कि जब वो जी उठा और दोबारा से आएगा तो 3रे बाब की 13वीं आयत में लिखा है, लेकिन उसके वादे के मुआफिक हम नए आसमान और नई जमीन का इंतजार करते हैं जिनमें रास्तबाजी बसी रहेगी। उसके जी उठने की ये बरकत है कि हम उसके इस वादे के पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं कि जब वो आएगा तो नया आसमान और नई जमीन होगी जिसमें रास्तबाजी बसी होगी। इस दुनिया से, आज की दुनिया से मुख्तलिफ, आज की दुनिया, आज की जमीन से मुख्तलिफ एक नया आसमान और नई जमीन जिसमें रास्तबाजी बसी होगी। वही माहौल, वही हालात जो हमें पैदाइश की किताब में नजर आते हैं, उन्हीं को बहाल किया जाएगा। और ये रेजरेक्शन की कुदरत, यीशु के जी उठने की कुदरत है। और उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के हवाले से इंसानों के लिए क्या खुशखबरी है, मुस्तकबिल के लिए, हाल के लिए खुशखबरी ये है कि खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना इंसानों की जिंदगियों में फतह लाता है। रोमियो का खत और उसके 6वें बाब में इंसानों की जिंदगियों में हाल के बारे में बरकत का जिक्र है। फिर उसके बाद मुस्तकबिल के बारे में बरकत का जिक्र है। खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना इंसान के माजी, इंसान के हाल और इंसान के मुस्तकबिल, उसके तीनों अदवार पर असरअंदाज होता है। इस दुनिया में हमारी जो गुनाह की जिंदगी गुजर चुकी है, इस दुनिया में जो हम जिंदगी गुजार रहे हैं, और इस दुनिया के बाद जो जिंदगी होगी उस पर भी यीशु का जी उठना असरअंदाज होता है। हमें रोमियो का 6वां बाब और रोमियो के 6वें बाब में हमें खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से 4थी आयत में जो रूहानी तौर पर नई जिंदगी का मिलना है उसका बयान 4थी आयत, 10वीं आयत और 11वीं आयत। 4थी आयत पहले हम मुताबिक करते हैं। 4थी आयत में लिखा है, बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मे के वसीले से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीले से मुर्दों में से जलाया गया
उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चलें। यीशु का जी उठना हमारे लिए एक नमूना फराहम करता है कि हम अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर नई जिंदगी में चलें। 10वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मसीह जो हुआ गुनाह के एतबार से एक बार हुआ, मगर अब जो जीता है तो खुदा के एतबार से जीता है। इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा मगर खुदा के एतबार से मसीह यीशु में जिंदा समझो। माजी को गुनाह के एतबार से मुर्दा और हाल में यीशु में, मसीह यीशु में खुदा के एतबार से जिंदा होना, ये खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की हमारी मौजूदा जिंदगी में कुदरत है कि हमारे माजी के गुनाह यीशु की मौत की तरह दफन कर दिए गए हैं, यीशु की मौत के मुशाबे हो गए हैं। हमारी माजी की जिंदगी, हमारे गुनाह, हमारी खामियां, हमारी नाकामियां, हमारी खताएं यीशु की मौत के सबब से खत्म कर दिए गए हैं और यीशु का जी उठना हमारे लिए एक नई जिंदगी की राह खोलता है, गुनाह से रहाई की जिंदगी, आजादी की जिंदगी, और ऐसी जिंदगी जिसमें गुनाह लिखा है, गुनाह तुम्हारे फानी बदनों पर बादशाही ना करे। हमारे हाल में यीशु का जी उठना हमारे गुनाहों से रहाई की जिंदगी को पेश करता है कि हमारी जिंदगी गुनाहों से रहाई की जिंदगी हो। जब हम यहाँ पर हर दफा ईस्टर मनाने आते हैं तो ये महज ईद ही नहीं है जो हम बड़ी खुशी से मनाने आते कि हमारा यीशु जिंदा हो गया, हमारा यीशु जिंदा हो गया है, हमारा यीशु जिंदा हो गया है। सिर्फ यही खुशी नहीं है, इसके साथ एक और बात भी जुड़ी हुई है कि यीशु जिंदा हुआ है तो ईमानदार भी गुनाह के एतबार से मर गए हैं और खुदा के एतबार से मसीह यीशु में एक नई जिंदगी के तौर पर जिंदगी का आगाज कर रहे हैं। यह हकीकी ईद क़यामत मसीह है। ईद क़यामत मसीह का असर या यीशु की क़यामत का असर अगर हमारी जिंदगियों में नहीं है तो फिर यीशु का जी उठना बेफायदा है। यीशु की ईद को मनाना हमारे लिए कोई मानी नहीं रखता कि अगर सिर्फ हम ईद मनाने आए हैं, हमने सुबह भी सनराइज सर्विस की, जाकर नाश्ता अच्छा किया, किसी ने सोइयां बनाई होंगी, किसी ने अच्छे अच्छे खाने बनाए होंगे, लेकिन ये महज सेलिब्रेशन है, ये महज सिर्फ खुशियां, बस महज इबादत के लिए आए हैं। लेकिन यीशु का जी उठना मेरे और आपकी जिंदगी में गुनाह के एतबार से मरना और खुदा के एतबार से एक नई जिंदगी का आगाज फराहम नहीं कर रहा, तो यीशु के जी उठने का मेरी और आपकी जिंदगी में कोई असर नहीं हुआ। यीशु के जी उठने का असर मेरी और आपकी जिंदगी में रूहानी तौर पर जिंदा होना है और फिर मुस्तकबिल में भी एक हमारे लिए जी उठने की उम्मीद है। ना सिर्फ इस जिंदगी में हाल में है, माजी के हवाले से है, मुस्तकबिल में भी है, और वो ग्रंथियों के पहले खत के 15वें बाब में ही उसका जिक्र किया गया है। और जो वो जी उठना है वो आज की जिंदगी से बिल्कुल मुख्तलिफ है और उसमें खुदावंद यीशु मसीह पहला फल हुआ है और वो हमको भी ईमानदारों को इसमें शामिल करेंगे। ग्रंथियों का पहला खत उसका 15वां बाब उसकी 42वीं आयत से लेकर 44वीं आयत तक लिखा है, मुर्दों की क़यामत भी ऐसी है, जिस्म फना की हालत में बोया जाता है, बका की हालत में जी उठता है, बेहुरमती की हालत में बोया जाता है, जलाल की हालत में जी उठता है, कमजोरी की हालत में बोया जाता है, कुव्वत की हालत में जी उठता है, नफसानी जिस्म बोया जाता है, रूहानी जिस्म जी उठता है। इसमें हमें खुदावंद यीशु मसीह के दफन होने और जी उठने की तस्वीर नजर आती है। खुदावंद यीशु मसीह जिस्म की हालत में दफन किए गए, जलाली बदन की हालत में जी उठे। खुदावंद यीशु मसीह गैर फानी हालत में जी उठे। यहाँ पर हमें ईमानदारों के लिए भी मुस्तकबिल में यीशु के जी उठने के वसीले से यही बुनियाद और खुशी की खबर फराहम की गई है कि ईमानदार खुदावंद यीशु मसीह में मुस्तकबिल में जब जी उठेंगे तो वो इसी हालत में जी उठेंगे कि फना की हालत में बोए गए हैं, गैर फानी की हालत में जी उठेंगे, बेहुरमती में बोए गए हैं और जलाल की हालत में जी उठेंगे। खुदावंद यीशु मसीह के साथ, खुदावंद यीशु मसीह के जैसे अख्तियार की सूरत में नहीं, लेकिन गैर फानी हालत में
खुदावंद यीशु मसीह के साथ उसको फॉलो करते हुए, जिसमें पहला फल यीशु बना है, ईमानदार भी जी उठेंगे। और ये हमारे लिए खुशी की खबर, ये हमारे लिए खुशखबरी है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो अपने अजीजों के लिए बड़े परेशान होते हैं। ये हवाला अक्सर जनाजों पर पढ़ा जाता है ताकि लोग तसल्ली पाएं, लेकिन ये हवाला असल में हम लोगों के लिए है कि हम अपने मुस्तकबिल के बारे में जान सकें कि हमारा मुस्तकबिल क्या है और उसमें हम उम्मीद पा सकें, उसमें हम ईमान में मजबूत हो सकें कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना हमारी जिंदगी में क्या बरकतें लेकर आता है। और वो बरकतें इंसान के माजी से शुरू होती हैं, हाल में उसके साथ चलती हैं, और मुस्तकबिल में भी उनमें उम्मीद है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की मानद जी उठेंगे और उसके साथ शामिल होंगे। इसलिए मेरे अजीजों, आज जब हम खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की ईद को मना रहे हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना हमारे ईमान को और तमाम दुनिया के माशरों से, दुनिया की तमाम अक़वाम से मुनफरद बनाता है, अलग करता है, और एक मुनफरद अंदाज में हमारे ईमान को मजबूत करता है कि हम जिस खुदावंद पर ईमान रखते हैं उसने मौत पर फतह पाई है, और उसकी मौत पर फतह दुनिया के इंसानों से मुख्तलिफ है। और उसकी मौत पर फतह न सिर्फ उसी की फतह है, इंसानों के लिए फतह है, ईमानदारों के लिए फतह है, न सिर्फ रूहानी तौर पर बल्कि जिस्मानी तौर पर भी ईमानदारों के लिए ये फतह का ऐलान है कि न सिर्फ हम रूहानी तौर पर यीशु की मौत पर फतह के बायस रूहानी तौर पर फतह पाते हैं, गुनाह पर फतह पाते हैं, यीशु की मौत के बायस हम जिस्मानी तौर पर भी आने वाली जिंदगी में अपने फानी जिस्म पर फतह पाएंगे और गैर फानी हालत में जी उठेंगे। इस उम्मीद में, इस ईमान में हमें मजबूत होने की जरूरत है कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो जी उठा है, उसके जी उठने की बरकत मेरे और आपके लिए है। लेकिन इस बरकत से फायदा उठाने के लिए, इस बरकत को अपनी जिंदगी में लेने के लिए हमारी जिंदगी में तब्दीली जरूरी है। जैसा मैंने पहले अर्ज किया कि जब तक हमारी जिंदगी में तब्दीली नहीं है, यीशु के जी उठने का मेरे और आपकी जिंदगी में कोई फायदा नहीं। यीशु जी उठा है तो उनके लिए जिन्होंने उसे अपनी जिंदगी में लिया है और नई जिंदगी शुरू की है। इसलिए मेरे अजीजों, आज ईद क़यामत मसीह को महज यीशु का जी उठना ना लें कि ये सिर्फ यीशु का जी उठना है। ईद क़यामत मसीह को अपना रूहानी तौर पर जी उठने का दिन बना लें कि आज के दिन हम रूहानी तौर पर जी उठें, रूहानी तौर पर माजी के गुनाहों को दफन करके एक नई जिंदगी के साथ जी उठें और नई जिंदगी के साथ आज से अपने दिनों का आगाज करें, ताकि हम मुस्तकबिल में दोबारा से जी उठने की उम्मीद को, खुशखबरी को अपनी जिंदगी में ले सकें। दोबारा से जी उठने की खुशखबरी उस वक्त ही हमारी जिंदगी में बरकत का बायस है अगर हमने खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने को आज अपनी जिंदगी में लिया है और आज हमने अपने आप को एक नए अंदाज में जिंदगी का आगाज प्रारंभ किया है। आज अगर हम नए अंदाज में जी उठे हैं, गुनाहों पर गालिब आने के लिए अपने आप को तैयार किया है, गुज़श्ता जिंदगी को दफन किया है और नई जिंदगी का आगाज करने का अगर अहद किया है, तो फिर हम मुस्तकबिल में भी यीशु के जी उठने को अपनी जिंदगी में ले सकते हैं। खुदावंद में तौफीक बख्शे कि यीशु का जी उठना हमारी जिंदगी में जी उठने का बायस है, हमारी जिंदगी का नए अंदाज में आगाज हो। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा कुद्दूस, हमारे जिंदा अज़ीज़ रब्बी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लिए, क्योंकि तूने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीले से फजल किया और हमारे लिए मुमकिन किया है कि आज हम यीशु का जी उठना मना सकें, उसके जी उठने की खुशी को मना सकें। खुदा हम दुआ करते हैं कि ये महज यीशु का जी उठना ना हो, बल्कि आज का दिन हमारी रूहानी पैदाइश का, रूहानी तौर पर जी उठने का दिन बन जाए। खुदावंद तू हमारी मदद कर, तू हमारे साथ हो, हमारे ईमान को मजबूत कर और आज यहाँ से हम एक नए चैलेंज के साथ वापस जाएं, यीशु के नाम से, आमीन।
खुदावंद की तारीफ में हम गीत नंबर 288 गाएंगे 288 खुशी खुशी मनाओ खुशी खुशी मनाओ बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। गीत नंबर 288 और इसके साथ हम अपने हदिये भी खुदावंद की हुजूरी में पेश करेंगे। जय 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 बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया मेरे लिए जिया मेरे लिए आया मेरे लिए जिया मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया मेरे लिए मार गया मेरे लिए गाड़ गया मेरे लिए मार गया मेरे लिए गाड़ गया मेरे लिए मिट्टी उठा मेरा है मसीह मेरे लिए मिट्टी उठा मेरा है मसीह। मैं मसीह का हूँ हम मसीह के हैं खुशी खुशी मनाओ खुशी खुशी मनाओ बोलो बोलो मसीहा की जय 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 बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। तोरी से तो जय तेरी हो जय तेरी हो जय तेरी हो बरकत तोरी से तो जय तेरी हो ये पूरी तारी तारी तारे जाल तारे तारी तारी ये पूरी तारी बरकत तोरी से तो जय तेरी हो जय तेरी हो जय तेरी हो बरकत तोरी से तो जय तेरी हो ये पूरी तारी फिर बोल हालेलुया जय हालेलुया हालेलुया मुबारक उसका नाम उसके आगे के कैसे का खुदा से मालिक वतन बादशाह हालेलुया 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 आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया 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 सारा जला यीशु तेरे लिए है 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 हालेलुया ओ हालेलुया 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 मेरी ये जिंदगी और मेरी अकल मेरी ये ताकत सारी और मेरा दिल मेरी ये जिंदगी और मेरी अकल मेरी ये ताकत सारी और मेरा दिल मेरी प्रभु यीशु तेरे लिए है
खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें ये मौका दिया कि आज हम बतौर कलीसिया इकट्ठे मिलकर तेरी इबादत कर सकें और तेरे बेटे यीशु की क़यामत की ईद को मना सकें। खुदावंद ये हमारे लिए ईद है, खुशी का मौका है और हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें सेहत और तंदुरुस्ती बख्शी ताकि हम इकट्ठे हो सकें, तेरी तारीफ के गीत गा सकें, तेरे कलाम को सुन सकें और यीशु के जी उठने की बरकत को अपनी ज़िंदगी में ले सकें। खुदावंद हदिया जात के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं जो तेरे लोगों ने शुक्रगुजारी के तौर पर तुझे दिए हैं और यकीनन ये तेरी दी हुई बरकत में से तेरे लोगों ने तुझे लौटाए हैं। तमाम देने वालों को बड़ी बरकत बख्श दे, रूहानी तौर पर और दुनियावी तौर पर बड़ी खुशहाली बख्श दे और खुदावंद अपनी कलीसिया की दुआ करते हैं हमारी सारी कलीसिया को खुदावंद मुआशी तौर पर खुशहाली दे, मुआशी बंधनों से रहाई दे
गुर्बत, बेरोजगारी यीशु के नाम से जाती रहे और तेरे लोग बरकत पाएं, खुशहाली पाएं, ईमान में मजबूत हों, रूहानी तौर पर भी ईमान में मजबूत होकर तुझसे बरकतें पाएं। और खुदावंद हम सब की तू हिफाजत कर। आज के दिन को हम सब के लिए मुबारक ठहरा और खुदावंद दुआ करते हैं कि आज यहाँ से हम एक नई जिंदगी के साथ वापस लौटें, नए आगाज के साथ वापस जाएं, पुरानी जिंदगी को, पुरानी इंसानियत को खत्म करके एक नई जिंदगी का आगाज करें, ताकि हम भी रूहानी तौर पर जिंदा होने की कुदरत को अपनी जिंदगी में ले सकें। उसी यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल हों। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज में बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर में माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और फजलाल हमेशा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शफ़क़त अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन। तशरीफ रखें। मेरी तरफ से और मेरे ख़ानदान की तरफ से, प्रेस्बिटेरियन चर्च एफसी कॉलेज की सेशन की तरफ से और तमाम ज़ैली अदारों की तरफ से आप सबको ईस्टर बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आप सबके साथ हो। और मैं दरख्वास्त है कि पहले मुझे जाने दें, फिर उसके बाद गीत जारी रहेगा, उस दौरान में आप लोग जाएं।